Hello students, starting from where we have left in the last class. Now we'll be starting with what is chemical equation. You all know the definition that it is the symbolic representation of a chemical reaction using the symbols and formula of the substance involved in the reaction. So whenever you're writing the reaction using the symbols and representing the whole chemical reaction by all the formulas and symbols, then this whole equation is known as chemical equation. Okay, you all know this, what are reactants, what are products, but still we'll take a revision here. As you can see the example, this is the example of chemical reaction. Sodium is reacting with water. Okay, sodium is reacting with water to form sodium hydroxide. So this is the reactant, this is the reactant. So two reactants combining to form two products. Okay, and arrow means gives, means when these two combine chemically, a new substance is formed, and that is the product. So you should know the definition, that the substance which are involved in the reactions are known as reactants, and the substance which are produced as a result of this reaction are known as products. Okay, this is another example where you can see two reactants, copper sulfate and sodium hydroxide, giving you copper hydroxide and sodium sulfate. Okay, now the reactions may involve one reactant and two or more product, two reactant and one product, two reactant and two product, two reactants and three product. So many type of reactions are there. Now we'll see the example. One reactant and two or more product means one reactant is breaking down into two product. Okay, so which type of reaction is this? This is decomposition reaction, in which one reactant is breaking down into two or more product. This type of reaction is known as decomposition reaction. So these are the two example of decomposition reactions. Now the another one is the two reactants and one product. तो क्या हो रहा है, एक तरह से दोनों जो reactants है वो combine हो रहे हैं, ठीक है, वो एक दूसरे में जुड़ जा रहे हैं, तो कंबाइन होके एक नई चीज बना रहे हैं। तो कौन से टाइप का रिएक्शन हो गया, ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरा नाम है इसका सिंथेसिस। इसको हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में भी है ये, लेकिन चूंकि यहाँ पे आया है तो हम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस। सो वेयर टू reactants are producing one product, this type of reaction is known as डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कंबाइन कर गए दो रिएक्टेंट्स और उन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया। ओके, नेक्स्ट टाइप इज व्हेन टू रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो जो एजी है पॉजिटिव वाला, उसने किसके साथ रिएक्ट किया है, उसने रिएक्ट किया है इसके नेगेटिव वाले के साथ, और इसके पॉजिटिव वाले ने किसके साथ रिएक्ट करा है, इसके साथ। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि दो प्रोडक्ट्स ने डिस्प्लेस करके, सॉरी दो रिएक्टेंट्स ने अपने आप को डिस्प्लेस करके दो नए प्रोडक्ट्स बना दिए। तो ये मेजर चार टाइप के जो आपके रिएक्शंस हैं वो हमने यहाँ पे स्टडी कर लिए हैं, और वो चार टाइप के रिएक्शंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट वाला था हमारा सिंथेसिस, ओके, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड वाला क्या था हमारा, सेकेंड वाला था जहाँ टू रिएक्टेंट्स एंड वन प्रोडक्ट है, वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ कंबाइन कर गया वो। एंड व्हेन टू रिएक्टेंट्स एंड टू प्रोडक्ट्स, तो वो हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये अब आपके हो गए मेजर कैटेगरी। उसके बाद आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो सब भी आगे आएगा, उसको हम फिर जैसे से आता जाएगा बस वैसे पढ़ते जाएंगे। ओके, नाउ विल सी अनदर एग्जांपल। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो प्रोडक्ट्स जो हैं, दो रिएक्टेंट्स जो हैं वो कितने सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मोर देन टू। तो एक तरह से ये भी डिकम्पोजिशन ही हो गया आपका, ये डिकम्पोज कर रहा है, इसमें टूट रहा है, इसमें ब्रेक डाउन कर रहा है। तो ये इस तरह से एग्जाम्पल है। ठीक है, स्केलेटन इक्वेशन कौन सी होती है वो आपको पता है। स्केलेटन इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो कि बैलेंस्ड नहीं है। ओके, वेयर टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द ईदर साइड्स आर नॉट इक्वल। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये देखिए आपकी, ये इन्होंने बनाई है आपकी स्केलेटल इक्वेशन। इसमें देखिए इस तरफ जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं, 2 + 2 4, और इधर कितना है ऑक्सीजन 3, यानी कि बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है,
तो अब हम इसको बैलेंस क्यों करते हैं, पहले तो सबसे पहले ये समझेंगे कि वाई देर इज अ नीड ऑफ बैलेंसिंग. वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन बिकॉज इट हैज टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर. और क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, कि जो मैटर है, it can neither be created nor be destroyed during the course of chemical reaction. It only changes its place, अपने नंबर्स को अरेंज कर लेता है, अपनी जगह को अरेंज कर लेता है, लेकिन डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होता है. ओके तो इसलिए इस को हम फॉलो करते हुए क्या करेंगे, ये भी आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है. ओके QR लिख लेंगे इसको. दिस इज क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग. वाई इक्वेशन शुड बी बैलेंस. तो कीवर्ड क्या आएगा यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर. फिर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो दिस इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग, दैट इज व्हाई वी नीड टू बैलेंस इट. अब बैलेंसिंग करने का तरीका क्या है, दो मेथड हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड एंड पार्शियल इक्वेशन मेथड. तो पहला मेथड जो है हिट एंड ट्रायल मेथड, हम वही करेंगे. तो दूसरा मेथड दिया है आपकी बुक में पार्शियल इक्वेशन मेथड, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, तो हम इसको नहीं करेंगे. हिट एंड ट्रायल मेथड हम ऑलरेडी आपको 8th में उसकी ब्रीफिंग कर चुके हैं, आप बैलेंसिंग सीख चुके हैं, इसलिए मैं बस एक दो एग्जाम्पल दूंगी, उसके बाद यू विल प्रैक्टिस ऑन योर ओन. ऑल द एग्जाम्पल्स गिवन इन योर बुक एंड द एक्सरसाइजेस you will practice in your copy. This is the first work you will be doing in your copy. You will learn how to balance and then you will do the questions. Example देखते हैं, ये वाला example one I will be explaining and after that you will be doing the rest of the questions. सबसे पहले यही method हमने आपको hit and trial method ही we have taught you in class 8th, जिसमें आपने क्या किया था, आपने जो elements थे वो लिखे थे और कितनी बार वो अकर कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज लिखी थी. तो सेम वे वी विल बी डूइंग हियर. सो वी हैव टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन. सो फर्स्ट वी विल राइट द एलिमेंट्स. कौन कौन से एलिमेंट है, कॉपर है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है. ठीक है, तो ये तो हो गए आपके एलिमेंट्स जो कि इस रिएक्शन में है. दोनों तरफ झांकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही तरफ देखिएगा, जो LHS में होंगे वही रिएक्टेंट्स उधर होंगे. ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू वॉच LHS में कितने एलिमेंट्स हैं और उनको एलिमेंट फॉर्म में आप लिख देंगे, उनके सिंबल्स लिख देंगे. उसके बाद आप ऊपर लिखेंगे LHS और फिर एक ब्रैकेट बनाएंगे, लाइन बनाएंगे और फिर आप लिखेंगे RHS. अब आप देखेंगे कि कॉपर कितने टाइम अकर कर रहा है दोनों तरफ. यहाँ पे भी 1 टाइम है और यहाँ पे भी 1 टाइम है. यू विल राइट जस्ट 1 दैट मीन्स इट इज बैलेंस्ड. हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो आप 2 लिख देंगे यहाँ पे इस तरीके से. उसके बाद सल्फर देखेंगे, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे कितने हैं, 1 2, तो सल्फर बैलेंस नहीं है, 1 2. ओके, और उसके बाद हम देखेंगे हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है. ओके, तो 4 लिख दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे काउंट करेंगे 4 4 5 6 एंड 1 7, तो यहाँ पे 7 है, यानी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बैलेंस करना शुरू करेंगे. यहाँ पे लिख लेते हैं इसको. तरीका वही है जो मैंने लास्ट ईयर आपको समझाया था कि ये सारा कुछ आप पेंसिल से करेंगे और उसके बाद जो आपकी फाइनल इक्वेशन आएगी उसको आप पेन से लिखेंगे. जो बैलेंसिंग आप करेंगे उसके आगे जो भी आप वर्ड लगाएंगे उसको ब्लैक कलर से या डिफरेंट पेन कलर से उसको लिख के उसको अंडरलाइन करेंगे, ताकि ये पता चल जाए कि आपने क्या बैलेंसिंग करी है. ठीक है, ओके. तो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हमारे कॉपर और हाइड्रोजन हमारे बराबर हैं, तो वी डोंट नीड टू, अभी हम इसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं. अब हम क्या करेंगे, सल्फर को बैलेंस करेंगे. तो सल्फर एक तरफ हमारा 1 है, एक तरफ हमारा 2 है, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम 2 लगा देंगे इस साइड, जिस साइड वो कम है, तो इस साइड वो कम है. ठीक है, तो इस तरफ हमने 2 लगा दिया. तो अब हमारा क्या हो गया, सल्फर हमारा इक्वलाइज हो गया, बैलेंस हो गया. तो अब यहाँ पे इसको काट के ऐसे कर लेंगे. ठीक है, ये बैलेंस हो गया. लेकिन इसकी वजह से हमारा क्या क्या बिगड़ गया, इसकी वजह से हमारा हाइड्रोजन बिगड़ गया है. ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को इक्वलाइज करेंगे. हाइड्रोजन इधर देखेंगे, यहाँ पे हमारा 4 हो गया, 2 × 2 4 हो गया है, तो हम यहाँ पे भी एक 2 लगा देंगे. ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा. अब हमारा हाइड्रोजन हो गया है 4 and 4. ओके, सो
दिस वे हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है। और अब हम आगे क्या करेंगे, अब हमें क्या बैलेंस करना है, अब हमें बैलेंस करना है, अब हम काउंट कर लेंगे एक बार फिर से। जब ये सब सारा करने के बाद हम इसको काउंट करेंगे तो देखेंगे हमारा ऑक्सीजन कितना है, क्योंकि ऑक्सीजन में ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ी थी। तो यहाँ पे देखेंगे 4 2s are 8, ओके, एंड इधर कितना है 4 5 6 7 8, और आप ये देखेंगे ये ऑटोमेटिकली अपने आप बैलेंस हो गया। सो दिस इज माय फाइनल इक्वेशन विच इज बैलेंस्ड। अब आपको करना क्या है, जो पूरी इक्वेशन है उसको ब्लू पेन से लिख दीजिएगा और इसको ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा इन नंबर्स को, और इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा टू शो दैट यू हैव बैलेंस्ड बाय पुटिंग दिस थिंग। तो बैलेंसिंग का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। एक्सरसाइज 1B जो आपकी बुक में है उसमें बैलेंसिंग के क्वेश्चंस दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 5 बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। वो सारे क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके करेंगे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हमें क्या नहीं बताती है। अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखें तो हमें उसका फिजिकल स्टेट नहीं बताती है कि वेदर इट इज़ अ गैस, वेदर इट इज़ अ लिक्विड। तो ये सारी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बाय एडिंग S फॉर सॉलिड एंड G फॉर गैस। इस तरह से हम अपने रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। पूरा रिएक्शन टाइम कितना ले रहा है वो हमें नहीं पता चल पाता है। देन वेदर हीट इज गिवन आउट और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसको हम कर सकते हैं, हम इस तरीके से हीट लिख सकते हैं। देन द रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, क्या कंसंट्रेशन लेनी है वो भी नहीं पता होता है हमें, रेट नहीं पता होता है और टाइम नहीं पता होता है, और रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है ये हम इसको ऐड कर लेते हैं साइन। whether the reaction is completed or it is not completed, complete हो गया या नहीं हो गया। तो now how can we make a reaction more informative। तो सबसे पहले अब हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे हम जो आपका टेम्परेचर वगैरह है उस सारे को कैसे, या हमने कौन से कैटलिस्ट यूज किया है, कौन सा प्रमोटर यूज किया। प्रमोटर अगर आपको याद हो, व्हाट इज प्रमोटर, प्रमोटर एक्चुअली प्रमोट्स कैटलिस्ट। दैट मीन्स जो कैटलिस्ट काम कर रहा है उसको और अच्छे से उसकी एफिशिएंसी को इन्हांस करता है, वो प्रमोटर होता है। ये रिएक्शन याद है 8th में हमने आपको याद कराया था कि ये बेस्ट एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारी चीज़ों के एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे आयरन जो है वो आपका कैटलिस्ट है और मोलिब्डेनम जो है वो आपका प्रमोटर है। एंड एट व्हाट टेम्परेचर दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, इट इज टेकिंग प्लेस एट 450 डिग्री सेल्सियस विच यू कैन राइट above or below the reaction. Then they have given you the pressure also, किस pressure पे reaction काम करेगा, that pressure is also given। तो more informative बन गया। रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, वहां पे हम ये वाला सिंबल लगाते हैं गिव्स की जगह। तो इस तरीके से हम ये वाला एरो, एक एरो, हाफ एरो इस तरह से, और ये वाला एरो इस तरीके से, ये एरो हम बना देते हैं। ये जो एरो है ये है रिवर्सिबिलिटी का साइन है ये, और ये बताता है कि जो ये रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। पहले ये दो कंबाइन करके ये बनाएंगे, उसके बाद फिर ये दो कंबाइन करके वापस ये बना देंगे। इस तरह से ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है आपका ओके तो अब देखेंगे कि हीट जो है वो इवॉल्व हुई है या उसको आपने एब्जॉर्ब किया है, ये कैसे दिखाएंगे रिएक्शन में। तो उसके लिए हम प्लस हीट और माइनस हीट का साइन यूज करते हैं। अगर जो रिएक्शन है वो आपका एक्सोथर्मिक है, हीट गिवन आउट है, तो वो हमारी आ जाती है इस तरीके से। ये आपका एग्जाम्पल है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, तो यहाँ पे इसको एक्सोथर्मिक है ये, ठीक है। ये वाला जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है और ये आपका जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है। तो इस तरीके से, और दूसरा आपको एंडोथर्मिक दिखाना है तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं प्लस हीट, रिएक्टेंट साइड पे आपने प्लस हीट लगा दी तो भी एंडोथर्मिक हो जाता है। तो ये दो तरीके हैं जिससे इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। प्रोडक्ट की साइड हीट लगा हुआ है यानी कि निकली है हीट, है ना, प्रोडक्ट बनता है निकलता है, तो इस तरीके से इसको याद करेंगे तो वो आपका हो जाएगा एक्सोथर्मिक, निकल रही है, एग्जिट कर रही है। और अगर आपने हीट दी है रिएक्टेंट को तो आप रिएक्टेंट साइड पर प्लस हीट लिख दीजिए, इसका मतलब आपने हीट दी है रिएक्शन को। या दूसरा तरीका इसका है कि माइनस हीट लिख दीजिए प्रोडक्ट साइड पे, ठीक है, प्रोडक्ट साइड पे लिख दीजिए माइनस हीट, तो ये हो जाएगा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरीके से आप उसको शो कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा कंसंट्रेशन, कैसे शो करेंगे हम, कि हमने जो एसिड दिया है वो अपने डाइल्यूट फॉर्म में है कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में। तो डाइल्यूट का सिंबल DIL शॉर्ट फॉर्म ऑफ डाइल्यूट, एंड कंसंट्रेटेड का शॉर्ट फॉर्म CONC।
ओके, तो ये हम लिखते हैं जब हम एसिड को डाइल्यूट फॉर्म में या कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेना है, अलग अलग रिएक्शन में एक्चुअली अलग अलग रिएक्शन होते हैं, तो इस तरीके से हम इसको डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड लिख सकते हैं। एक उसका मतलब है विथ वाटर मीन्स सॉल्यूशन फॉर्म में है, ठीक है। लिक्विड आपको पता ही है, गैस आपको पता ही है, तो इस तरीके से आप अपने रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। ओके, प्रेसिपिटेट में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इस तरीके से डाउनवर्ड एरो को प्रेसिपिटेट अगर कोई फॉर्म हुआ है रिएक्शन में, ये रिएक्शन आपने अच्छे से याद करी है 8th क्लास में, अगर आपको याद है हमने प्रेसिपिटेट रिएक्शन के अंडर में इसको एग्जाम्पल को लर्न किया था, जहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl बना रहा था। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड हाउ विल यू शो दैट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म बाय डाउनवर्ड एरो लाइक दिस। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको अपना कॉपी में करना है। दिस इज द फर्स्ट वर्क व्हिच इज कमिंग। आपको ये पूरा क्वेश्चन कॉपी में अच्छे से हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके करना है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, पहले भी वर्ड रिलेटिव हटा के इसको समझते हैं। रिलेटिव हटा दिया हमने और एटॉमिक मास समझा। तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट एक ही बात है कि एटॉमिक मास क्या है और एटॉमिक वेट क्या है। एटम्स कैसे हैं? दे आर वेरी वेरी स्मॉल, दे कैन नॉट बी seen with the naked eyes, even with the microscope also they are not, we cannot see it। हमें उसके लिए बहुत हाई डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए जिससे हम उसको देख सकते हैं। तो जब वो इतनी छोटी चीज़ है, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक एटम का साइज मुझे बता दीजिए, मास बता दीजिए, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। ओके, वी कैन नॉट वे इट डायरेक्टली, देयर इज नो मेथड बाय विच इट कैन बी वेड। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे? हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, और जो फिजिक्स के कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स हैं उनको हम यूज करेंगे। और वो क्या है? उन इनडायरेक्ट मेथड से हमने एब्सोल्यूट मास निकालना शुरू कर दिया है। क्या है उसको हम आगे समझेंगे, बट पहले हम ये देखेंगे द मास ऑफ, ये है आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻24। समझ रहे हैं? -24 कैसे? 1.66 डिवाइडेड बाय 100। कैन यू इमेजिन कितना छोटा हो गया ये आपका? नहीं, आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर इसको वे करना है हमें, तो मतलब वे करने के बाद जो वर्ड आया, ये आया है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड दे आर टू स्मॉल। तो इनको हम कहीं पे कैलकुलेशन में यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी वेरी इनकन्वीनियंट, ठीक है। और ये भी इनकन्वीनियंट है कि इसके आगे हम ग्राम वगैरह लगाएं कि ये ग्राम में है। ओके, ये ग्राम में है ये यूनिट, तो इसको हम इतनी बड़ी यूनिट के साथ अगर हम इसको देखेंगे तो और भी ज़्यादा नंबर छोटा हो जाता है। तो हमें कुछ ऐसी कोई यूनिट चाहिए जिससे हम उसका अप्रोप्रिएट मास जो है उसको हम, एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए जिससे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरह से हम रिलेटिव एटॉमिक वेट या रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने की कॉन्सेप्ट आया कि जब इतना छोटा है तो उसको हम किसी के रिलेशन में निकाल लेते हैं, कंपैरिजन में निकाल लेते हैं कि इसके बराबर ये इसके बराबर हो, इस तरह से। स्टार्टिंग में क्या हुआ था? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि लाइटेस्ट है हाइड्रोजन, तो उन्होंने कहा ठीक है इसको हम एज ए यूनिट यूज कर लेंगे बाकी सबके साथ कंपैरिजन करने के लिए। तो 1961 तक हाइड्रोजन वाज कंसिडर्ड टू बी the mass of hydrogen was considered to be taken as the unit, उसको यूनिट की तरह माना गया था कि वो यूनिट है। लेकिन उसके बाद मतलब 1961 के बाद कार्बन 12 को सिलेक्ट किया था, क्योंकि जैसे ही कार्बन 12 को उन्होंने सिलेक्ट किया तो उससे क्या हुआ, उसका जो अडॉप्शन हमने किया कार्बन 12 का, तो पहले की जो भी यूनिट थी उसमें कोई भी अंतर नहीं आया। ओके, तो अभी हमने इसको समझा कि हमें हाइड्रोजन को पहले हम रेफरेंस ले रहे थे, लेकिन बाद में हमने उसको कार्बन 12 को रेफरेंस लिया है। इसको एक बार अच्छे से इसको समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। सबसे पहले हाइड्रोजन की जगह कार्बन इसलिए लिया गया कि कार्बन जो है वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता था, तो इसलिए ईजी था कंपेरिजन, जबकि हाइड्रोजन नहीं करता था, इसलिए हाइड्रोजन को हटा दिया गया। अब ऐसे समझेंगे कि सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि जो मास है कार्बन एटम का, उससे हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। पहले तो हम ये निकालेंगे मास ऑफ वन कार्बन एटम है कितना। तो देखेंगे मास ऑफ वन कार्बन एटम इज इक्वल टू 12, यानी कि एक कार्बन का एटम के वन कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 हाइड्रोजन एटम्स। बड़ा है ना कार्बन का, तो इसलिए एक कार्बन का एटम का जो मास है वो किसके बराबर है? वो है 12 हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर। ओके, पहले तो ये समझ लेंगे।
अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कंपैरिजन करेंगे। किससे कंपैरिजन करेंगे? मान लीजिए हमें उन्होंने पहले फॉर्मूला ये दिया था। पहले उन्होंने बोला कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास अपॉन मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। पहले इन्होंने ये डेफिनेशन दी, ठीक है, ध्यान से इसको समझेंगे तब समझ में आएगा। पहले उन्होंने डेफिनेशन क्या दी कि रिलेटिव एटॉमिक मास विल बी मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, जिसका हमको निकालना है, और उसको हम डिवाइड करेंगे कार्बन 12 एटम से। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन का अगर निकालने के लिए चलिए तो हाइड्रोजन का 1/12 हो गया। ओके, कार्बन का हो गया 12/12, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का हो गया 16/12, नाइट्रोजन का हो गया 14/12। तो बड़ा ही डिफिकल्ट, ये जो डिनोमिनेटर था ये 12, इसने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम निकाली, और इसकी वजह से अब ये हुआ कि किसी कुछ इस तरह से करते हैं कि ये डिस्टर्ब ना करे, है ना, इसको कुछ फॉर्मूला ऐसा बनाते हैं कि ये डिस्टर्ब ना करे और हमारा जो मास है वो ठीक से निकले। तो इन्होंने बोला कि उसको हम 1/12 कर देते हैं। बाद में उन्होंने ये डेफिनेशन लगा दी। जब 1/12 किया उन्होंने तो उससे क्या हुआ भाई, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। एक कार्बन 12 कितने का है, 12 का, तो उसका 1/12 कितना हो जाएगा, 12/12 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब अब हमें हर उसको मास को किससे डिवाइड करना है, हर मास को डिवाइड करना है 1 से। ओके, देखेंगे हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, कार्बन का उस फॉर्मूले से निकालने से 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा हमारा 16 डिवाइडेड बाय 1, फिर 14 डिवाइडेड बाय 1। तो ये हमारा निकल के आ गया इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। और जो यूनिट हम यूज करते हैं वो करते हैं AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, और सिंपली उसको हम लिख सकते हैं U। ओके, फॉर्मूला इज U, सिंपली U। तो इस तरीके से हमने इस डेफिनेशन को कर लिया। आपको उस डेफिनेशन को बस इतना याद रखना है कि कैसे निकालते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, और 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है, 1/12 मतलब 12/12। तो इससे हमारे ये निकल आते हैं, और इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मासेस और रिलेटिव एटॉमिक वेट। और इस तरीके से आपके एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं, इसको आपको याद करना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का जो मास था, इट वाज अप्रोक्सीमेटली इतना ग्राम। ओके, इतना ग्राम था एक कार्बन एटम का जो मास था, दिस वाज दिस मच। अब हमें AMU को कन्वर्ट करें ग्राम में, तो हमने ग्राम में इसकी यूनिट निकाल ली है। तो जो हमारा 1 AMU है, इट इज अप्रोक्सीमेटली दिस मच ग्राम, ये याद करना है आपको। ओके, तो 1 एटॉमिक यूनिट, तो उसका मास अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो कार्बन 12 का कितना था, अभी हमने देखा था, इट वाज 1.9926 into 10 to the power -23 grams। ये हमारा दिस इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 एटम इन ग्राम्स, ठीक है। और उसको कन्वर्ट कर लिया 1 AMU को, तो 1 AMU कम्स आउट टू बी दिस मच। ओके, अब आ जाता है हमारा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अभी तक हम एटॉमिक मास की बात कर रहे थे, एक एटम की बात कर रहे थे, और अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की। तो ये डेफिनेशन है, आप याद कर लेंगे कि द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स वन मॉलिक्यूल। यहाँ पे वन एटम नहीं आएगा, वहां पे पीछे वन एटम था, तो वन एटम कितना हैवियर है 1/12 से, यहाँ पे आ जाएगा वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। निकालते कैसे हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार इसको फिर से देखते हैं। H2SO4 को कैलकुलेट करना है, इस पूरे मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है इस वाले में हाइड्रोजन हमारा कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। ओके, सल्फर कितना है, 1 सल्फर है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो बस हमें हाइड्रोजन के एटम पता है कितने हैं, 2 हैं, तो इसका जो एक हाइड्रोजन का 1 AMU होता है, तो 2 का हो जाएगा 2।
सल्फर का एक जो होता है वो है आपका 32 का, यहाँ पे एक ही है तो 32 ऐड कर देंगे इसमें। ऑक्सीजन एक 16 का है तो 4 कितने होंगे, 16 इंटू 4, दैट मीन्स 64, तो यहाँ पे 64 ऐड कर देंगे। तो इसके बाद ऐड करने के बाद हमारा नंबर आएगा 98 और यूनिट लगा देंगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो 98 AMU जो है वो आपका H2SO4 का मास है, पूरे मॉलिक्यूल का मास। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक एटम, एक मॉलिक्यूल जो ये दिखाई दे रहा है इसमें कितने एटम्स हैं और कितनी बार रिपीटेड है। जैसे हाइड्रोजन 2 बार रिपीटेड है, सल्फर 1 बार रिपीटेड है, ऑक्सीजन 4 टाइम्स रिपीटेड है। तो इस वाले में आपको एक एटम का अगर मास पता है तो आप बाकी का ऐड करके निकाल देंगे। ऐड होगा, इसको मल्टीप्लाई मत कर लेना, ठीक है, ये ऐड होगा, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टाइम्स होगा कि जैसे ऑक्सीजन 4 है तो 16 इंटू 4 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से और एग्जाम्पल देखते हैं अभी। ये देखिए, ये आ गया, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहले केन शुगर आ गया, C12H22O11, फिर वही करेंगे, कार्बन के कितने 12 एटम्स, हाइड्रोजन के कितने 22 एटम्स, ऑक्सीजन के कितने 11। अब आपको एक कार्बन का पता है, कितना होता है एक कार्बन का, 12 होता है ना, एक कार्बन का 12 होता है, तो यहाँ पे 12 इंटू 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन का कितना है 1 होता है एक का, तो 22 का कितना होगा 22 इंटू 1। ऑक्सीजन का एक होता है 16 का, तो 11 इंटू 16। और उसके बाद इन तीनों को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले पहली वैल्यू 12 इंटू 12 144, प्लस प्लस का साइन लगाएंगे, कार्बन के साथ हाइड्रोजन के एटम्स प्लस होंगे, और हाइड्रोजन कितना है 22 इंटू 1 22, ऑक्सीजन 11 इंटू 16 176। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 342। यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट जरूर लिखनी है आपको। सो 342 AMU इज द मास ऑफ 1 केन शुगर मॉलिक्यूल। एक ओके, अब देखेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस फार्मूला, इस फार्मूला को देखेंगे जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब इसमें देखेंगे तो हमारा क्या दिखाई देगा, पहले कॉपर सल्फेट है और उसके बाद उसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का पहले अलग निकाल लीजिए, ओके, और उसको ऐड करना है, ये ऐड ही होगा। इस डॉट को देख के यहाँ पे मल्टीप्लाई मत कर देना, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये ऐड ही होगा। तो कॉपर का 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, फिर वाटर में देखेंगे, वाटर में हाइड्रोजन के हो गए 10, हाइड्रोजन के हो गए 10 और ऑक्सीजन के हो गए 5। ठीक है, इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल और 5 मॉलिक्यूल। तो कैलकुलेट करो कितने ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन हो गए 2 + 2 + 2 + 2 + 2, कितने हो गए 10। तो ये हो गया, तो या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल का 18 होता है, तो 5 का कितना होगा 18 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 90 के करीब, है ना, 90 आ जाएगा ये हमारा। अब हमें कॉपर और इसका निकाल लें पहले हम। कॉपर का कितना होता है, कॉपर का होता है हमारा 63.5, ठीक है, सल्फर का हमारा होता है 32, ऑक्सीजन एक का 16 होता है, तो 4 के कितने होंगे 16 इंटू 4, और प्लस हमारा ये आ गया वाटर मॉलिक्यूल का। तो इसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया, और सारा ऐड कर दिया, और तो हमारा आ गया ये हमारा 249.5 AMU। करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप पूछेंगे। अब आ जाता है हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मतलब कि एक मॉलिक्यूल में कोई अगर पर्टिकुलर चीज हम पूछ रहे हैं तो उसका कितना परसेंट है वो हमें निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, यानी टोटल वेट ऑफ द एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। देखेंगे कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है वाटर में, ठीक है। हमें वाटर मॉलिक्यूल का AMU हमें पता है कैसे निकालते हैं हम, H2O है तो हाइड्रोजन 2 हो गए यहाँ पे, प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 16, यानी 18 AMU आ गया हमारा वाटर का
मास एक मॉलिक्यूल का। अब हमें उसमें निकालना है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो 2 अपॉन टोटल वेट अपॉन 18 और मल्टीप्लाइड बाय 100, चूंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हमारा इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। ओके, अब ये एक थोड़ा डिफिकल्ट देख लेंगे हमने। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन निकालना है, ठीक है, नाइट्रोजन निकालना है यूरिया में। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन है कितने इसमें। इसमें नाइट्रोजन है 1 और नाइट्रोजन है 2, यानी 2 नाइट्रोजन है। ओके, और एक नाइट्रोजन का कितना होता है मास 14, तो 2 का कितना हो गया, 2 का हो गया 28। तो यानी जो भी इस टोटल मॉलिक्यूल का मास निकलेगा 28 डिवाइडेड बाय द टोटल, जो भी टोटल निकलेगा, ये यूरिया का वो है फॉर्मूला। तो टोटल ऑफ यूरिया निकाल के और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नाइट्रोजन का मास आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पे, देखो वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल वेट ऑफ यूरिया इनटू 100, तो 28 था हमारा नाइट्रोजन का, 60 है हमारा पूरा यूरिया का, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे उसको। तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। चलो एक पूरा अच्छे से एक फॉर्मूला लेके और एक कैलकुलेशन सीख लेते हैं, इसमें पूरा ही समझ में आ जाएगा इस पूरे उसमें। अब इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन है कि Na2CO3, ये एक कंपाउंड है Na2CO3, इसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सबका आपको क्या निकालना है, सबका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। यानी यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सोडियम ऑल्सो, फाइंड आउट द composition of percentage composition of carbon also, and you have to find out the परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो। सबसे पहले हमें जो कुछ दिया होगा न्यूमेरिकल में, वो ऑक्सीजन का आपको दे दिया इन्होंने, एटॉमिक मास 16, सोडियम का एटॉमिक मास दे दिया है आपको 23 और कार्बन का एटॉमिक मास दे दिया आपको 12। मेरा सजेशन यही है कि जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनके आप एटॉमिक मासेस याद कर लीजिए, और जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल करते जाएंगे वो याद होते जाएंगे आपको। तो सबसे पहले देखेंगे सोडियम कितने हैं। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए हमें टोटल इस मॉलिक्यूल का मास पता होना चाहिए। तो टोटल मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी इसमें एटम्स प्रेजेंट हैं उनके मासेस को ऐड कर देंगे, लेकिन कितने टाइम्स प्रेजेंट है ये हमें पता होना चाहिए। सोडियम इज प्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स, इट इज प्रेजेंट एज 2 टाइम्स, तो 1 सोडियम इज 23, तो 2 कितने के हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे आपके 46 के। तो सोडियम का निकल गया। फिर कार्बन का निकाल लो, कार्बन एक ही है तो 12 ही रहेगा। ऑक्सीजन 16 का है, लेकिन यहाँ पे कितने एटम्स है, 3 है, ऑक्सीजन 3 है, तो 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 16 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, ये 48। ठीक है, तो ये हमारे निकल गए पूरे के पूरे, सबके अलग अलग निकाल लिए हमने। अब हमें इसे ऐड करना है, तो अब हम इसको ऐड करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, 46 प्लस 48 प्लस 12 कितना होता है, ये होता है 106 AMU। यानी हमें इस पूरे मॉलिक्यूल का हमने मास निकाल लिया है, इस पूरे मॉलिक्यूल का मास है 106। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखेंगे कि अलग अलग कैसे निकालते हैं एक एक उसका। ओके, तो 106 था हमारा टोटल का, तो 100 सारे किससे डिवाइड होंगे, 106 से। सोडियम का निकालना है, तो 2 सोडियम है, यानी 1 होता है 23, तो 2 कितना होगा, 2 होगा आपका 46। तो जब हम सोडियम का निकालेंगे और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, फिर आ गया दूसरा, इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आपका आ जाएगा 43.4 grams of sodium। फिर आ गया हमारा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, 3 है, तो 3 का मतलब हो गया 16 इंटू 3 यानी 48। तो ऑक्सीजन का निकालेंगे 48, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का। तो ये कैलकुलेट करके करीब हमारा आ जाएगा 45.3 grams ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन एक ही है, तो 12 अपॉन 106 multiplied by 100, this will give you
11.3 ग्राम्स ऑफ। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट में इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है आपको, उसमें इन्होंने परसेंटेज मास ऑफ वाटर इन वॉशिंग सोडा क्रिस्टल, पूरे वाटर का मास पूछ लिया, परसेंटेज पूछ लिया है। तो सबसे पहले इस पूरे मॉलिक्यूल का हम क्या निकालेंगे, मास निकाल लेंगे। ये मैंने ऑलरेडी निकालना सिखा दिया है। देखिए ये हमारा निकल आया है 286 AMU। तो वाटर का कितना होगा, हमारे कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 10 है ना, 10 है ना, 10 वाटर, 10 H2O है। तो एक का हमें पता है कितना होता है, एक का होता है 18, तो 10 का क्या होगा 18 इंटू 8 यानी 180। तो 180 ऊपर रखेंगे क्योंकि हमें वाटर का निकालना है, टोटल मॉलिक्यूल का नीचे रखेंगे यानी 286 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमारा ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का वाटर क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज निकल आएगा और वो हमारा है 62.9 ग्राम। इसका आंसर आएगा 62.9 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, एक बार करके देखनी, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिए। अब आ जाते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे, एम्पेरिकल फार्मूला। व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, फाइंडिंग आउट द एम्पेरिकल फार्मूला। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है सिंपलेस्ट रेशियो होता है। जो भी फार्मूला है उसके जो नीचे नंबर्स हैं उनको आप एक सिंपल उनको रेशियो में ले आओ। फॉर एग्जांपल देखेंगे H2O2। अब इसके 2 किस रेशियो में है, 2 1 2 2 1 2 यानी 1 के रेशियो में, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो गया HO। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं। C6H12O6, 6 1 6, किस रेशियो में है, C1 H2 और O1। तो 1 को नहीं लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा CH2O। ये है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। दैट मीन्स आपको उसको जो भी उसका सिंपलेस्ट रेशियो है होल नंबर्स ऑफ एटम्स में डिफरेंट एलिमेंट्स का, उनको जब आप एक मॉलिक्यूल एक रिप्रेजेंट करते हैं एक फार्मूला से, तो वो उसका एम्पेरिकल फार्मूला हो जाए। फिर से समझेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट फार्मूला which gives the simplest ratio in whole number of atoms of different elements present in one molecule of the compound। समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल देखो, C2H4O2, सिंपलेस्ट फॉर्मूले में लाओ उसको, तो इसका हो गया आपका CH2O। यानी कि क्या दो अलग अलग कंपाउंड्स के भी फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, यस। इसका और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों का सेम आ रहा है। सो द एम्पेरिकल फॉर्मूला कैन बी सेम फॉर 2 और मोर कंपाउंड्स। दो कंपाउंड्स के एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिया, ग्लूकोज दैट इज ये, और एसिटिक एसिड CH3COOH। इसको सिंपल फॉर्म में लिखें, कितने कार्बन है इसमें 1 2, कितने हाइड्रोजन है इसमें 4, कितने ऑक्सीजन है 2। तो इनका भी एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो कैन बी सेम। ओके, तो इस तरीके से एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो दो अलग अलग उसका भी सेम हो सकता है। अब आ जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा, मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो जैसे हमने H2O2 का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या निकाला था, 1 1 1, तो HO निकाला था। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा, हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 यानी कि 17। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज 17। ओके, वैसे क्या होता, वैसे होता हमारा 2 प्लस 16 इंटू 2 कितना हो गया 32 इज इक्वल टू 34। वैसे 34 होता है H2O2 का, लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास जो फॉर्मूला आपने लिखा है उसी का मास निकालना है। तो हाइड्रोजन इसमें 1 है तो 1, ऑक्सीजन इसमें 1 है तो एक ही का लिखेंगे 16, तो ये बन जाएगा 17 AMU। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी निकाल सकते हैं। सो दस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर, और इसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं जो आपके करने हैं आपको कॉपी में,
और बाकी सारे न्यूमेरिकल्स आप करके देखेंगे इसमें, जितने भी इसमें दिए हुए हैं पीछे न्यूमेरिकल्स। और एक्सरसाइज 1C है इसमें, आपके पास अगर बुक है तो उसको नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 2 आप बुक में ही कर देंगे। ओके, एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 2, you have to complete the table in the book itself. Okay, then question number 8 of 1C you have to do in the copy. Question number 8 of 1C you have to do in the